Hello student, myself Nazneen Akhtar. Welcome to my study channel Naz Studies. Today we will learn about DNA replication. In the last video we have discussed DNA structure, RNA structure and also various in molecular biology. Today we discuss on DNA replication. DNA replication. So, what we understand by DNA replication? DNA replication क्या है? DNA replication is a process in which two new DNA molecule is produced from its parent DNA. That is your replicate means this one is DNA. यही DNA when it form two new DNA, okay, from the single DNA, then we can say that the process is replication. Here the same type of DNA molecule is produced in a process of DNA replication. So we can also call it as a autocatalytic. When the DNA produce the other DNA molecule of same structure or similar structure or same type of DNA molecules, then we are call it as a autocatalytic. So DNA replication. And one more thing we will discuss in DNA replication. We have studied DNA replication. It can be conservative replication, semi-conservative replication or disruptive replication. But Messelson and Stahl 1958 में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के ऊपर बात किए थे. सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. In which he told that from the parent DNA, okay, from the parent DNA another new strand will form, and these two strands, one is your old strand, another one is your new strand, or first one is your parent strand, another one is your new strand. In the same way here also, one is your parent strand or old strand, another one is your new strand. Means it is semi-conservative, means half conserved. One strand is parental type, other is your new strand. When this DNA strand, okay, when it replicate, तो पहले क्या होता है, it separate हो जाता है. These two strands separated, okay. This is parent strand, this one is also parent strand. After this parent strand, then other strand is formed like this. In the same way, in this strand also, other strand is, these two is formed. So one is your parent and another one is your daughter strand. In the same way, parent strand and daughter strand. The new strand जो बनता है DNA replication में, उसे हम daughter strand भी बोलते हैं. और ये जो है, then again what it form like this. Means see here, one is parental strand, other one is daughter strand. Means तो ये सेमी कंजर्वेटिव हुआ because strand is parental type, अदर जो नया है तो सेमी कंजर्व, आधा कंजर्व हो गया. So DNA strand which we discuss here is a semi conservative replication. How the replication take place, okay? जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन प्रोसेस में हमने अभी बताया कि डीएनए रेप्लिकेट करता है एंड रेप्लिकेट करते हुए वे अपने डॉटर स्ट्रैंड बनाता है जो सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है डीएनए के. और ये सेमी कंजर्वेटिव इसलिए है बिकॉज इन द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ओके, हियर वन एक्ट एज ए पेरेंट स्ट्रैंड एंड अदर न्यू स्ट्रैंड जो फॉर्म होता है उसे हम डॉटर स्ट्रैंड बोलते हैं, एंड दे आर एक्ट एज ए कम्प्लीमेंटरी टू द पेरेंट स्ट्रैंड. जो ये दो स्ट्रैंड बनता है, तो फॉर एग्जाम्पल देखो ये पेरेंट स्ट्रैंड है, ओके. इस पेरेंट स्ट्रैंड में मान लो हम पढ़ते हैं डीएनए में हमारा 4 बेसिस है, A, T, G, C, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन. तो A, T मान लो है, यहाँ G है, या C है, A है, T है, कुछ भी है. तो जो अनदर जो डॉटर स्ट्रैंड विच इज फॉर्म फ्रॉम दिस पेरेंट स्ट्रैंड, तो ये कैसे बनता है? तो ये बनता है, अगर यहाँ A है
तो इसमें हमारा न्यू स्ट्रैंड में यहाँ आ गया टी, टी है तो ए, जी है तो सी, सी है तो जी, ए है तो टी, टी है तो ए, इन दिस वे। और इन दोनों के बीच में ए है तो यहाँ पर यहाँ टू स्ट्रैंड वो ए हो गया। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू राइट लाइक दिस, ओके, दिस वन ए हो गया। देन यहाँ ए है तो टी, जी, सी, ए एंड टी, ओके। तो देखेंगे जो हमारा पेरेंट स्ट्रैंड में है, जो वट एवर द न्यूक्लियस बेसिस हियर गिवन हियर एंड अदर जो स्ट्रैंड न्यू डीएनए फॉर्म हुआ, इसमें हम देखते हैं जो एनपी और नाइट्रोजनस बेसिस है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। यहाँ पर एडेनिन जो है हमारा थाइमिन से पेयर करता है एंड साइटोसिन जो हमारा ग्वानिन से पेयर करता है। और जो पेयरिंग बॉन्ड है दैट इज आवर हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज आवर हाइड्रोजन बॉन्ड से बना हुआ है। तो ए जब टी से करता है तो ए डबल बॉन्ड से करता है, और सी व्हेन पेयर्स विद जी इट पेयर्स विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है, इसीलिए हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोलते हैं, बिकॉज इट कॉम्प्लीमेंट विद द पेरेंट स्ट्रैंड। एंड ये जो हमारा डॉटर स्ट्रैंड है हम उसको कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग विद द parent strand. Okay, the new strand is complementing with the parent strand. That's why we can call as a complementary strand. तो हमारा parent strand से इस तरह two new daughter strand बनता है. Now we will discuss about the mechanism in replication. Mechanism. So what are the mechanisms that we see here? First is your initiation of molecule, then unwinding of helix, second step unwinding of helix, third is your formation of primer, and fourth is your elongation of new strand, elongation of new strand. तो पूरे डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस या मैकेनिज्म को हम 4 स्टेप्स में हाउ द रेप्लिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस, और इसके साथ साथ इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, एंजाइम इन्वॉल्विंग replication. So what are the different types of enzyme that are involved here? DNA polymerase 3, DNA polymerase 3, 1 and 2. Second is your helicase. Third is your SSBP, single strand binding protein. Fourth is your ligase. Fifth is your topoisomerase. So various enzymes are involved during the replication process. और ये रेप्लिकेशन प्रोसेस में इन प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट, इन्हीं एंजाइम को अलग अलग नामों से जाना जाता है. इन प्रोकैरियोट इट इज डिफरेंट, इन यूकैरियोट इट इज डिफरेंट, बट द मैकेनिज्म ओवरऑल इज सेम. सो यू नो विद दिस वन इज आवर डीएनए. ओके, दिस डीएनए क्या होता है, ये फर्स्ट इट नीड टू बी सेपरेट, मीन्स द टू स्ट्रैंड नीड टू बी सेपरेट. इसी सेपरेशन के बाद तुम्हारा अगेन द टू न्यू स्ट्रैंड इज फॉर्म. मान लो दिस टू पेरेंट स्ट्रैंड, तो एक पेरेंट हुआ और डॉटर बना, यहाँ पेरेंट है एंड इधर डॉटर बना. सो इन दिस वे द टू न्यू स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज. इसी प्रोसेस को हम वी विल एक्सप्लेन हाउ दिस न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन टेक प्लेस. तो फर्स्ट वी विल सी हियर
डीएनए हमारा स्ट्रैंड होता है, ओके। मान लो एक स्ट्रैंड इस तरह से जा रहा है 5 days to 3 days, तो अनदर स्ट्रैंड जो है तुम्हारा 3 days to 5 days। मीन्स डीएनए स्ट्रैंड दैट इज द न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज जो टेक प्लेस होता है, द पोलैरिटी होता है डीएनए स्ट्रैंड का 5 days to 3 days डायरेक्शन होता है। ऑलवेज द स्ट्रैंड मूव्स और द न्यू न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस टेक प्लेस दैट इज इन 5 days to 3 days डायरेक्शन। अगर वो 5 days to 3 days हो रहा है, इसका मतलब वो 3 days to 5 days एंड में ही आपका न्यू डीएनए स्ट्रैंड डॉटर बना, तो ये 5 days to 3 days मूव करेगा। सो हियर वी विल सी दैट मान लो दिस 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है जिसको आई हैव मेड लाइक दिस, इन विच रेप्लिकेशन फॉर्म बना है, एंड अगर ये 5 days to 3 days जा रहा है तो अनदर स्ट्रैंड हमारा 3 days to 5 days, बिकॉज डीएनए स्ट्रैंड ऑलवेज रन इन द एंटी पैरेलल डायरेक्शन। मान लो ये 5 days to 3 days है तो ये 5 days to 3 days है, ऑलवेज रन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो हमने जब व्हेन वी सी है कि एक 5 days to 3 days है तो अनदर 3 days to 5 days है। अब यही 2 स्ट्रैंड में हमारा क्या होता है, एक पॉइंट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां पर आपका जैसे मान लो इस पॉइंट ऑफ डीएनए है, एक ओरी पॉइंट है जहां पर हमारा रेप्लिकेशन होना है, तो एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो तो हेलिकेज जो एंजाइम होता है दैट एक्ट एट द ओरी पॉइंट, ओके। तो जब इन द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो उसे सेपरेट करने के लिए, द 2 स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड एज हेलिकेज एंजाइम। तो ये एंजाइम आता है और ओरी पॉइंट में आके लगता है, दैट इज योर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से ये 2 स्ट्रैंड जो है सेपरेट होना शुरू होता है। तो ये कैसे सेपरेट होता है 2 स्ट्रैंड ना, इन दोनों के बीच का मान लो जैसे ये ए है, टी है तो हमने बताया था, सी है तो जी है, तो इनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसे ये ब्रेक कर देता है, तोड़ता है, एंड इन दिस वे जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो इस तरह से ये टूटते हुए खुलते हुए जा रहा है। तो द पॉइंट वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंड एट दैट पॉइंट हेलिकेज एंजाइम एक्ट एंड सेपरेट द 2 स्ट्रैंड, ओके, 2 पैरेंटल स्ट्रैंड। तो सेपरेट हो गया। अब हम देख रहे हैं 5 days to 3 days डायरेक्शन है, अनदर हमारा 3 days to 5 days डायरेक्शन है। तो ऑलवेज द न्यू स्ट्रैंड दैट इज फॉर्म हियर विल बी फॉर्म 5 days to 3 days, पोलैरिटी है, तो यहाँ 3 days है तो अनदर स्ट्रैंड जो फॉर्मेशन होगा यहाँ 5 days इसका, यहाँ ये 3 days, एंड ये इस तरह से पूरा एक्सटेंड करते हुए आएगा, ओके। जिस तरह से हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिस तरह से स्ट्रैंड खुलते हुए जाएगा एंड तुम्हारा स्ट्रैंड जो है न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस होते हुए आता रहेगा, एंड ये खुलता हो जाएगा एंड न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस होते हुए जाएगा इन दिस वे। तो ये जो स्ट्रैंड जो इन ए कंटिन्यूस प्रोसेस है इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, बिकॉज इट इज इन कंटिन्यूस प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए लीडिंग स्ट्रैंड। लीड कर रहा 5 days to 3 days, एंड इन द 3 days न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज हो रहा है और ये न्यू डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म होते हुए जा रहा है, ठीक है। इसे कौन कर रहा है, इसे कर रहा है हमारा जो एंजाइम है डीएनए पॉल 3, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज 3 हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड हेल्प इन द न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, डीएनए पॉलीमरेज 3। साथ में जो जहाँ फॉर एग्जाम्पल ये खुलते हुए जा रहा है इन दिस साइड, तो ये जो साइड खुल रहा है तो इसे कौन कर रहा है, इसे इट इज डन बाय हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो ये फॉर्क बना, वाई शेप फॉर्क बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, रेप्लिकेशन फॉर्क। वाई शेप जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज ए रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। तो हेलिकेज एंजाइम एक्ट किया एट ओरी साइड, तो हमारा वहां से स्ट्रैंड खुलते हुए गया, जैसे ही खुलते हुए गया पोलैरिटी मेंटेन करता है डीएनए पॉलीमरेज 3 दैट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 अपने आप डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म नहीं करेगा, उसे प्राइमर की रिक्वायर्ड होती है, और ये प्राइमर कहाँ आता है तुम्हारा, सबसे पहले आके यहाँ लगता है, ठीक है। एंड इसे बोलते हैं, ये जो प्राइमर है दैट इज कॉल्ड एज आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर का 3 days एंड में ही आपका न्यू स्ट्रैंड, हम यहाँ पर प्राइमर फॉर्म बना दे रहे हैं,
ओके। एंड इसके प्राइमर के साथ साथ फिर ये न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस हो सकता है टेकिंग द 3 days साइड ऑफ आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर का सिंथेसाइज जो एंजाइम करता है उसे बोलते हैं प्राइमेज। प्राइमेज इज द एंजाइम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर के बिना हमारा न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नहीं होगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 अपने से न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस नहीं कर सकता है, उसे प्राइमर चाहिए। तो फर्स्ट प्राइमर इज अटैच्ड एट द 3 days end here, and then at the 3 days end the new DNA strand synthesis take place like this, and it is called as leading strand. ये तो लीडिंग स्ट्रैंड की बात होगी। अब व्हाट हैपन टू दिस स्ट्रैंड, यहाँ तो 5 days है, ओके, एंड इधर 3 days है। तो हम इस साइड से तो हम न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस नहीं कर सकते, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस टेक प्लेस फ्रॉम द 5 days है। 5 days to 3 days पोलैरिटी मेंटेन कर रहा है। दैट्स वाई अगर हम इधर से लेते हैं जहाँ से ये ओपनिंग हो रहा है, आपका रेप्लिकेशन फॉर्म खुलते हुए जा रहा है, तो पहले तो यहाँ खुला होगा, फिर यहाँ खुला होगा, खुलते खुलते इस तरह से मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। तो जहाँ से खुल रहा है हम कह सकते हैं पहला हमारा यहाँ स्ट्रैंड सिंथेसिस हुआ होगा, फिर यहाँ हुआ होगा, फिर यहाँ हुआ होगा। जिस तरह से खुलते हुए जा रहा है ये स्ट्रैंड बनते हुए जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से खुल रहा है एंड बन रहा है। तो इसकी पोलैरिटी कैसी आती है, इसकी पोलैरिटी आती है इस लाइक दिस 5 days to 3 days, 5 days to 3 days इन दिस वे। यहाँ पहला स्ट्रैंड यही बना होगा आपका, दिस वन, फिर ये बना होगा, फिर ये बना होगा। इस तरह से ये मतलब खुल रहा है एंड 5 days to 3 days एंड द न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस टेक प्लेस। यहाँ पर आपको जितने न्यू स्ट्रैंड होगा तो पहले प्राइमर लगता है, ओके, लाइक दिस द प्राइमर्स आर अटैच्ड हियर लाइक दिस। जैसे सेवरल आरएनए प्राइमर, जितना बार न्यू फ्रेगमेंट बनता है तो पहले प्राइमर बनता है, और प्राइमर के साथ साथ आपका न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज 3 कर रहा है। तो जितना बार ये प्राइमर बना, ओके, सो दिस प्राइमर्स आर फर्स्ट फॉर्म एंड आफ्टर दैट देन न्यू स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज। लेकिन यहाँ जो भी स्ट्रैंड बन रहा है ये टुकड़े टुकड़े में बन रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ओकाज़की फ्रेगमेंट। ओकाज़की फ्रैगमेंट बोलते हैं इसे, जो बैक्टीरिया में जाता है एटलीस्ट 1000 to 1200 न्यूक्लियोटाइड, एंड ईकार्योट में, इन केस ऑफ ईकार्योट, ये 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड देखा गया है। ओकाज़की फ्रैगमेंट से बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस हो रहा है इसे बोलते हैं, और ये डिसकंटिन्यूस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। मतलब ये लैग कर रहा है, लीडिंग तो सीधे सीधे लीड हो रहा है, लैगिंग मीन्स ये इस तरह से मतलब पीछे पीछे तरफ आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। आफ्टर दिस स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज, ओके, इस तरह से ये खुलते जा रहा है एंड इस तरह से स्ट्रैंड बनते हुए जा रहा है। आफ्टर दिस स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज देन दिस आरएनए प्राइमर जो है यहाँ से ये रिमूव हो जाता है, बाय दिस स्ट्रैंड इज देन जॉइंड। ये जो स्ट्रैंड के बीच में गैप है ये फिर फिलअप हो जाता है, दिस स्ट्रैंड गैप इज फिलअप। तो इसे फिलअप कौन करता है, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम इस गैप को हेल्प करता है, फिल करता है बाय जॉइनिंग 3 days to 5 days फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बाय जॉइनिंग द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस तरह से ये फिर ये जो गैप है ये आपका फिल हो जाता है, ठीक है। तो इन दिस वे द लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड इन a DNA replication में the 2 strands are formed, and in this way the DNA replication mechanism process take place. These are 2 strands of DNA, one running in 5 days to 3 days direction, other running is 3 days to 5 days direction. Those which is running in a 5 days to 3 days direction means 3 days to 5 days है, तो another strand जो इसमें complement करेगा that run in 5 days to 3 days direction. In the second cases में हम तो इसे हम leading strand बोल रहे हैं. In the second cases we will see that this strand यहाँ पर ये 5 days है तो हम 3 days to 5 days तो नहीं करेंगे, हमें 5 days to 3 days लेना है. That's why जहाँ से replication fork जैसे जैसे खुल रहा है हमारा न्यू strand फॉर्म हो रहा है. And after the new strand is formed तो इसे कौन करता है, that is done by RNA primer. प्राइमर आके
यहाँ बहुत सारे प्राइमर लगते हैं, यहाँ सिर्फ वन रीडिंग में 1 लगता है, एंड यहाँ बहुत सारे प्राइमर बार बार लगते हैं, क्योंकि एक फ्रेगमेंट न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस हो रहा है 5 days to 3 days, 5 days to 3 days like this, and then this RNA प्राइमर को बनाने में हेल्प कौन करता है? बाय द एंजाइम प्राइमेज। दिस स्मॉल फ्रेगमेंट को हम ओकाज़की फ्रेगमेंट बोलते हैं। 1000 to 1200 न्यूक्लियोटाइड it is found in case of bacteria or prokaryote, and in case of eukaryote 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड ओकाज़की फ्रेगमेंट देखा जाता है। ये जो फॉर्क खुल रहा है, इस तरह से जो वाई से फॉर्म बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फॉर्क। ये स्ट्रैंड को हम 3 फ्लैगिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। तो आफ्टर द स्ट्रैंड विच इज फॉर्म, देन आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया जाता है, एंड आफ्टर दैट लाइगेज एंजाइम आता है और इसे द गैप इज फिल अप बाय दिस लाइगेज एंजाइम और रिसील कर देता है, एंड द न्यू स्ट्रैंड ऑफ इस तरह से सिंथेसाइज होता है। इन दिस वे, इन द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड टेक प्लेस। एंड यहाँ पर द सेवरल एंजाइम हमने डिस्कस किया था, डीएनए पॉलीमरेज 3, हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, लाइगेज, टोपोआइसोमेरेज एंड प्राइमेज। अच्छा, 1-2 एंजाइम हमने कर दिया, एसएसबी एंड टोपोआइसोमेरेज। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन हमारे लैगिंग साइड में ही आके लगते हैं, ओके, लाइक दिस इज एसएसबी प्रोटीन जो आके इन द लैगिंग साइड में लग जाते हैं। एसएसबी इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये लैगिंग साइड में टू प्रिवेंट द कॉइलिंग ऑफ डीएनए फिर से कॉइल ना हो जाए, वाइंड ना हो जाए, फिर से ये मतलब गुच्छे में ना आ जाए। दैट्स वाई ये अगर एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन लग जाते हैं तो इट प्रिवेंट द कॉइलिंग ऑफ स्ट्रैंड। साथ में टोपोआइसोमेरेज है। टोपोआइसोमेरेज इज द एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस। हम इसे थोड़ा आगे देख रहे हैं। व्हेनेवर दिस स्ट्रैंड इज ओपनिंग, जब भी कोई स्ट्रैंड ओपन होता है तो हम इस तरह से देखते हैं कि व्हेन द ट्रू स्ट्रैंड, जब धागा खुल रहा है, ट्रू स्ट्रैंड, अगर कुछ सूता का भी अगर धागा बंधा हुआ अच्छे से, अगर हम उसे सेपरेट करना चाह रहे हैं लाइक दिस, हम इधर से खोलते हुए जा रहे हैं तो हमें पता चलता है कि उसके ऊपर की तरफ में एक टेंशन क्रिएट होता है, या धागे की वजह से खुलने की वजह से ऊपर एक टेंशन क्रिएट होता है। तो इस टेंशन को रिलीज करने के लिए, व्हेन द ट्रू स्ट्रैंड कॉइलिंग में है ना, अगर वो अनकॉइल होता है, जैसे हम जैसे खुलते हुए जाता है तो इट क्रिएट टेंशन एट द अपसाइड। तो जैसे ही टेंशन क्रिएट होता है तो इस टेंशन को जो रिलीज करता है, रिलैक्स करता है, उसके साथ जो यहाँ पर बोन ब्रेक हो जाता है उसको हेल्प करता है, रिसील करता है। दैट इज डन बाय टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। तो topoisomerase release the tension that is created during the opening of this strand. This is all about the enzyme involved here. This is the mechanism of DNA replication. We all discussed today here about how the replication of DNA take place. This is all about today class. Wait for the next video. Till then, bye.